کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کی جدید سائنس جن رازوں کو ہزاروں سیٹلائٹس، طاقتور دوربینوں اور لیبارٹریوں کے ذریعے دریافت کر رہی ہے، ان میں سے بیشتر راز 1400 سال پہلے قرآن میں واضح کر دیے گئے تھے۔ پہاڑوں سے لے کر سمندروں کی گہرائیوں میں چھپی لہروں تک، شہد کی مکھی کی حیرت انگیز ساخت سے لے کر انسانی جنین کی تخلیق کے مراحل تک، قرآن ہر قدم پر انسانی عقل کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کی وسعتوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہی نہیں، قرآن صرف ظاہری کائنات کا علم نہیں دیتا، بلکہ باطنی ہدایت، روحانی شعور اور فطرت کی زبان میں ایسی نشانیاں بیان کرتا ہے جو آج کے سائنسی ادوار میں بھی تحقیق کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ آئیے آج ہم دریافت کرتے ہیں کائنات کے 11 عظیم راز، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری راز آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ یہ جو رنگ برنگے پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، انہیں ریمبو ماؤنٹینز کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ چین اور پیرو میں پائے جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور دیگر مختلف رنگوں والے راستے ہیں، اور کچھ پہاڑ بہت سیاہ رنگ کے بھی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے، جہاں کسی کو ان رنگین پہاڑوں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، اور نہ ہی عرب میں دور دور تک ایسے پہاڑ پائے جاتے تھے۔ تو آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے خود سے بیان کر سکتے تھے؟ کیا اب بھی آپ لوگ قرآن کی سچائی کا انکار کریں گے؟ آپ نے سمندر کی لہروں کو تو ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر بھی لہریں ہوتی ہیں؟ انہیں انٹرنل ویوز یعنی داخلی لہریں کہا جاتا ہے۔ جب سمندر میں پانی ایک سطح پر حرکت کرتا ہے اور کسی رکاوٹوں کی وجہ سے خلل پیدا ہوتا ہے تو لہریں بنتی ہیں۔ یہ حقیقت 1873 میں دریافت کی گئی تھی، مگر قرآن نے ہمیشہ کی طرح یہ حقیقت بہت پہلے بیان کر دی تھی۔ یا جیسے کوئی گہرے سمندر میں ہو جہاں اندھیرے پر اندھیرا چھایا ہوا ہو، جسے اوپر ایک لہر نے ڈھانپا ہو اور اس لہر پر ایک اور لہر ہو، پھر ان لہروں کے اوپر بادل چھائے ہوں۔ قرآن کا یہ راز بہت ہی حیران کن ہے۔ قرآن کریم میں ایمبریالوجی جنین کی تخلیق کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نطفے کو جسم میں داخل کر کے بچے کی تخلیق کرتا ہے، جبکہ سائنس نے 19ویں صدی میں ایمبریالوجی کو دریافت کیا۔ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ نطفہ جسم کے اندر کس طرح مراحل سے گزرتا ہے اور بچہ بنتا ہے۔ پھر ہم نے نطفے کو مضبوط جگہ میں ٹھہرایا، پھر نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں بدل دیا۔ وہ بہت ہی بابرکت والا ہے، وہ اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے بغیر کسی جدید آلات کے بھی یہ سب کچھ جاننا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر کیتھل مور دنیا کے مشہور اور اناٹومی کے ماہر جنین پروفیسر ہیں، جنہوں نے انسانی تخلیق سے متعلق قرآنی بیانات پر سائنسی تحقیق بھی کی۔ انہیں سعودی عرب میں مدعو کیا گیا، جہاں عبدالعزیز یونیورسٹی نے انہیں قرآن کی وہ آیت دکھائی جن میں انسانی ایمبریو کو بیان کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر کیتھ مور نے ان آیات کو پڑھا، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، قرآن نہ صرف بیرونی ترقی کے مراحل کی درست وضاحت کرتا ہے بلکہ اندرونی مراحل کی بھی نشاندہی کرتا ہے جنہیں 7ویں صدی میں جاننا ممکن نہیں تھا۔ یہ جگہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اسے ڈیتھ ویلی کہا جاتا ہے۔ یہاں جو بڑے بڑے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کا اوسطن وزن 320 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پتھر خود بخود حرکت کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ پتھر بغیر کسی انسان یا جانور کی مدد کے خود سے حرکت کرتے ہیں۔ کئی سالوں تک سائنسدان اس بارے میں پریشان رہے کہ آخر یہ پتھر کیوں حرکت کرتے ہیں۔ بالآخر 2014 میں سائنسدانوں نے پتھروں کی حرکت کو قید کر دیا۔ جیسا کہ ویڈیوز میں دیکھا گیا، سردیوں میں بارش کے بعد ایک تالاب بنتا ہے جو راتوں رات جم جاتا ہے اور اگلے دن سورج کی حرارت سے پگھلنے لگتا ہے۔ جیسے ہی ہلکی سی ہوا چلتی ہے، برف کے ٹکڑے ان پتھروں کے پیچھے جم جاتے ہیں اور انہیں دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ اللہ کی خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔
इस आयत में अल्लाह ताला ने हैरान कुन बात बयान फरमाई। यहाँ कुछ ऐसे पत्थरों का जिक्र है जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। यहाँ सिर्फ आम चट्टानों के गिरने की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो एयरवैन या हवा की वजह से गिरते हैं। इस मुकाम पर मुमकिन तौर पर इन्हें खुद से हरकत करने वाली पत्थरों की बात हो रही है। अल्लाह बेहतर जानता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोगों को हदायत देने के लिए मच्छर जैसी मामूली मखलूक की भी मिसाल बयान फरमा सकता है। साइंस ने ये दरियाफ्त किया कि मच्छर के पर एक सेकंड में 300 से 600 मरतबा हरकत करते हैं। सिर्फ यही नहीं, मच्छर के पास नहायत हसास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से वो इंसानों और जानवरों को दूर से महसूस कर लेते हैं। इसी तरह इनमें हीट और विजुअल सेंसर भी मौजूद होते हैं जो शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं। मच्छर की आंखों में ऐसे सेंसर होते हैं जिनसे 360 डिग्री तक देख सकते हैं और रात को भी आसानी से देख लेते हैं। हैरत की बात यह है कि मच्छर दुनिया के सबसे खतरनाक जानदारों में शामिल हैं, क्योंकि इनकी वजह से हर साल 10 लाख लोग हलाक हो जाते हैं। इसलिए कुरान में ये भी बयान फरमाया गया है, जो ईमान लाने वाले हैं वो जानते हैं कि ये इनकी रब की तरफ से हक है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि अल्लाह को इस मिसाल से क्या मुराद है। अल्लाह इसके जरिए बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हदायत देता है, और वो इससे सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। यानी कितनी मामूली मखलूक में भी अल्लाह ने निशानी रखी है हदायत के लिए। और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में और छतों में, यानी लोगों के घरों में अपना घर बनाओ, फिर हर किस्म के फलों में से खाओ और अपने रब के बनाए हुए नर्मो आसान रास्तों पर चलती रहो। इसके पेड़ से एक पीने की चीज निकलती है जो मुख्तलिफ रंगों की होती है। इसमें लोगों के लिए शफा है। बेशक इसमें गौर फिक्र करने वालों के लिए एक निशानी है। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहद में लोगों के लिए शफा है। साइंस ने अपनी जदीद तहकीक के जरिए ये साबित किया है कि शहद में कुदरती तौर पर कई अहम खुसूसियात मौजूद हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी डायबिटिक असरात। यह खुसूसियात शहद को न सिर्फ बीमारियों से बचाव का जरिया बनाती है, बल्कि ये निज़ाम तनफ़्फ़ुज़, निज़ाम हज़म, दिलो दिमाग और असाबी निज़ाम को भी ताकत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसीलिए माहिरीन शहद को एक कुदरती, महफूज और मुअस्सर शफा बख्श ग़िज़ा करार देते हैं, जो इंसानी जिस्म के लिए बेहद मुफीद है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें लोगों के लिए शफा है, और आगे ये भी फरमाया कि इसमें गौर करने वालों के लिए निशानी है। वाकई क्या ही खूबसूरत बात है। जब आपके जिस्म पर चोट या जख्म आता है तो यकीनन आपको दर्द महसूस होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दर्द कैसे महसूस होता है? जब आपकी जिल्द पर कट लगता है तो जिल्द में मौजूद दर्द महसूस करने वाले खुलगे, पेन रिसेप्टर्स फौरन दिमाग को सिग्नल भेजते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस होता है। जिल्द में मौजूद इन पेन रिसेप्टर्स को 1906 में चार्ल्स अस्कार शेरिंगटन ने दरियाफ्त किया था, लेकिन कुरान मजीद ने सदियों पहले ही इसका जिक्र फरमा दिया था। बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम इन्हें आग में डालेंगे। जब भी इनकी खालें जल जाएंगी तो हम इन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे, ताकि वो अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। यह आयत वाज़िह तौर पर बयान करती है कि दर्द महसूस करने की हिस्स खाल में है, ना कि सिर्फ अंदरूनी जिस्म में, और यही आज का जदीद साइंसी नजरिया है। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला खलाई मिशन लॉन्च किया और यूं खला की तलाश का सफर शुरू हुआ। इसके बाद इंसानों ने एक के बाद एक खलाई मिशन किए और 19वीं सदी में इंसानों ने दरियाफ्त किया कि वो खला में जा सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिन्नों और इंसानों की जमायत, अगर तुम आसमानों और जमीनों की सरहदों से निकल सकते हो तो निकल जाओ, तुम नहीं निकल सकते मगर ताकत के जरिए। इस आयत से ये जाहिर होता है कि एक वक्त जरूर आएगा कि इंसान खला में सफर करेगा, लेकिन वो खला की मुकम्मल सरहदों से कभी पार नहीं हो सकेगा। आज का साइंसी हकायक भी यही कहते हैं कि हमने अभी तक खला का सिर्फ 4 से 5% हिस्सा दरियाफ्त किया है। तकरीबन 96% खला तो अभी तक एक्सप्लोर है, और मौजूदा हालात के मुताबिक हमारे लिए पूरी कायनात की खोज लगाना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास ऐसी तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। और यही हकीकत बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कुरान में पहले ही बयान कर दी गई है। कुरान की अरबी ज़बान इतनी यूनिक और अजीमोशान है कि आज की जदीद अरबी भी इसके करीब नहीं पहुंच सकती। कुरान मजीद सिर्फ एक आम अरबी ज़ुबान में लिखी गई किताब नहीं है,
बल्कि इसकी जुबान एक इल्हामी मखसूस और इंतहाई फसीह और बलीग अरबी है, जो आम बोलचाल की अरबी से कहीं ज्यादा बुलंद, जामिया और मौजज़ाना अंदाज रखती है। ये फर्क सिर्फ अल्फाज के इंतखाब तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें ग्रामर, जुमलों की साख्त, आवाज़ों का उतार चढ़ाव और अल्फाज की तरतीब तक में गहराई पाई जाती है। यही वो मुनफरद असलूब है जिसने उस वक्त के माहिर अरब शायर और अदीबों को भी हैरान कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कफार मक्का कुरान की तिलावत सुनते तो वो फौरन पहचान लेते कि ये किसी आम इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इनके दिल इस बात की गवाही देते कि ये कलाम ना तो किसी शायर का है, ना किसी कहानत या जादूगरी का, बल्कि ये किसी मावराई और इल्हामी जरिया से नाजिल हुआ है, और वो जरिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में तमाम इंसानों और जिन्नात को चैलेंज दिया कि अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं, तो तुम सब मिलकर इस जैसी एक सूरत या एक ही जैसा बाप बनाकर दिखा दो। ये चैलेंज आज भी कायम है, और कोई भी ना उस वक्त और ना आज कुरान के जैसा कलाम ला सका और ना ही ला सकेगा, क्योंकि कुरान सिर्फ किताब नहीं बल्कि खालिक़े कायनात का जिंदा, अटल और बेमिसाल कलाम है। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुरान के इन 7 हैरानकुन राजों के बाद आइए अब जानते हैं 4 बोनस सीक्रेट्स जो साइंस और अकल को चकरा कर रख देते हैं। क्या आप जानते हैं कि खला बिल्कुल खामोश नहीं है? नासा ने अपनी जदीद तरीन मशीनों से ये दरियाफ्त किया है कि कुछ मखसूस जगहों पर खला में आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ये आवाजें इंसानी कान से नहीं सुनी जा सकती, बल्कि इन्हें मखसूस रेडियो सिग्नल्स के जरिए तर्जमा करके सुनाया जा सकता है। अब सुनिए कुरान में क्या फरमाया गया। फिर जब आसमान फट जाएगा और वो गूंज उठेगा। ये आयत बताती है कि खला और आसमान की भी एक मखसूस आवाज है, एक गूंज। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साउंड डिटेक्टर था? यकीनन नहीं। तो फिर ये इल्म कहाँ से आया? सिर्फ उस जात की तरफ से जो हर चीज का खालक है। साइंस का एक और इंकशाफ ये है कि हवा का भी वजन होता है। हजारों साल तक लोग ये समझते रहे कि हवा तो बेवजन है, मगर जदीद फिजिक्स ने साबित किया कि एयर प्रेशर यानी हवा का दबाव दरअसल इसके वजन की वजह से होता है। कुरान फरमाता है अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है, फिर वो बादल उठाती हैं। यह आयत वाज़िया करती है कि हवाएं सिर्फ चलती नहीं बल्कि उठाती हैं, यानी इनमें वजन को हरकत देने की ताकत है। ये बात इस वक्त तक कोई नहीं जानता था, जब न कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की थ्योरी थी, न कोई एयर मास कैलकुलेशन। क्या आप जानते हैं कि पानी सिर्फ एक माया नहीं बल्कि पूरी कायनात की बुनियाद है? कुरान में अल्लाह फरमाता है और हमने पानी से हर जानदार चीज पैदा की, यानी ये पानी ही है जिससे जिंदगी की शुरुआत हुई। सितारे हों या सियारे, इंसान हो या जानवर, सबकी तख्लीक की कहानी पानी से शुरू होती है। ये राज सदियों बाद साइंस ने दरियाफ्त किया, मगर कुरान ने 1400 साल पहले ही वाजिया कर दिया था। एक चींटी ने पूरी फौज को खबरदार किया कि आपने ये मंजर सोचा है? कुरान कहता है जब वो चींटियों की वादी में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान और इसके लश्कर तुम्हें कुचल ना दे और इन्हें खबर भी ना हो। ये महज एक कहानी नहीं बल्कि आज साइंस भी मानती है कि चींटियां न सिर्फ एक दूसरे से बातचीत करती हैं बल्कि खतरात की सूरत में अलर्ट सिस्टम भी चलाती हैं। सवाल ये है, 1400 साल पहले एक गैर हयातियाती निजाम में ये इल्म कैसे आया? ये इल्म जमीन का नहीं आसमान का है। अगर आपको लगता है कुरान वाकई सच है तो आइए इसे सिर्फ पढ़े नहीं, समझे, माने और दूसरों तक पहुँचाएं। रब की तरफ पलटें, क्योंकि इल्म सिर्फ वही है जो हदायत दे। ईमान जगाने वाली मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुरान में मौजूद वक्त और कायनात के राजों की गहराइयों की। और याद रखें, ये कायनात खामोश है मगर इसकी हर चीज बोल रही है।